enzymes play a role in the digestion of the end product. So there is a different ducts which comes together and secrete the juice into the duodenum. So that this is a liver which is connected to the containing hepatic duct, to the hepatic duct connected into the cystic duct. This is cystic duct. Cystic duct present in the gallbladder. Gallbladder. Very important. If the name is the duct is called cystic duct, so it's related to the gallbladder. Very important. And hepatic duct is related to the liver. Two important point: cystic duct and hepatic duct. Okay. Cystic duct related to the gallbladder and hepatic duct related to the liver. So from the hepatic duct cells secrete bile juice and goes into through the hepatic duct. This bile juice goes into the gallbladder. So in the gallbladder, this juice are stored, bile juice. Okay, this bile juice. So in the bile juice there is no enzyme, but the pigment like bilirubin and biliverdin, which is found by the breakdown of the red blood cells, cholesterol and phospholipids and bile salt. This bile salt helps the emulsification of the fat. This is fat molecules and emulsify into the simpler form, that is called micelle. So that is helping the emulsification and breakdown of the large fat molecules into a simpler form, that is known as micelle. After this goes into this duct, open into the duodenum. Okay, so this duct, cystic duct, and there is another duct related to the pancreas. This is pancreas, called pancreatic duct. So pancreatic duct and bile duct together open into the common duct, that is called hepatopancreatic duct. What is called beta? Hepatopancreatic duct. These ducts are secrete different types of juices. Okay, these ducts secrete different type of juices, like this bile juice, and this is pancreatic juice. And this duodenum, this portion also secrete their own juice called intestinal juice. Intestinal juice. Okay, so discuss one by one. First we discuss pancreatic juice. First we discuss about pancreatic juice. This is pancreas secrete a juice called pancreatic juice. So in the pancreatic juice there is many of enzymes which are present in inactive form. इनएक्टिव फॉर्म मतलब अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं. तो वो कौन 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 से एंजाइम हैं? कौन कौन से बेटा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. वन बाय वन वी डिस्कस. वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है इससे. ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये कैसे तीनों एक क्लास के एंजाइम हैं. इनको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम. ये एक ही क्लास के हैं जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. कहाँ से निकलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस से. लेकिन किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में. किस फॉर्म में बेटा? इनएक्टिव फॉर्म. ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पहले किस में बेटा? ट्रिप्सिन में. किसमें? ट्रिप्सिन में. कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज. कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज. वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूकोसल लेयर सिक्रेटेड एंटेरोकाइनेज एंजाइम विच एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन. अब ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया. अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? डाइजेशन करेगा प्रोटीन का. किसका बेटा? प्रोटीन का.
जो प्रोटीन ऊपर, कहाँ ऊपर, स्टमक में किस फॉर्म में टूटी थी, किस फॉर्म में टूटी थी, पेप्टोन में, प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में टूटी थी, वो डाइजेस्ट होगी अब डाइपेप्टाइड में, क्योंकि प्रोटीन बनी होती है पॉलीपेप्टाइड की, जब छोटी होगी तो डाइपेप्टाइड। तो अब ये इसमें किसको तोड़ेगी, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में, ठीक है। ये तीनों जो हैं, अब इसको कौन एक्टिवेट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को, यही ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को किस फॉर्म में, काइमोट्रिप्सिन में, किसमें, काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर दिया, ये एक्टिवेट कर देगा इसको, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को। तो ये तीनों किसको डाइजेशन करेंगे, प्रोटीन को इनटू द डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड मतलब दो पेप्टाइड, दो अमीनो एसिड, एक ही अमीनो एसिड, एक ही अमीनो एसिड, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, डाइपेप्टाइड। और बॉन्ड जो होगा वो हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, CONH बॉन्ड, COONH बॉन्ड, जो वाटर के रिमूवल से बनता है, डिहाइड्रेशन से बनता है। ये हो गया हमारा इसका फंक्शन, समझ में आ गया बेटा। अब क्या होगा बेटा नेक्स्ट, ये तो हो गया जो पेनक्रियास से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स निकलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और भी बहुत सारे एंजाइम है जो पेनक्रियास से निकलते हैं, जो डाइजेशन करते हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है पेनक्रियास से, तो जो पेनक्रियाटिक बेटा एमाइलेज है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, तो पेनक्रियाट जो हमारा स्टार्च 30% डाइजेस्ट हुआ था वो अब पूरा डाइजेस्ट होगा माल्टोज में। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड। 30% डाइजेशन माउथ में डाइजेस्ट हुआ था, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। और नेक्स्ट जो स्टार्च डाइजेस्ट होगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो रिलीज करेगा उसके थ्रू। बात समझ गए बेटा, इसके थ्रू डाइजेस्ट होगा। ये हो गया इसका डाइजेशन, प्रोटीन का उधर हो गया डाइपेप्टाइड में। और ये क्या सिक्रीट करेगा, लाइपेजेस। तो लाइपेज जो फैट है, फैट को डाइजेस्ट करेगा लाइपेज। तो जो पेनक्रियाटिक जूस से जो लाइपेज निकलता है वो डाइजेस्ट करता है मोनोग्लिसराइड, मोनोडाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड, ग्लिसराइड में डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट हो गया। कौन कौन डाइजेस्ट हो गया, आधे, अभी पूरा फुल डाइजेशन नहीं हुआ। प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया डाइपेप्टाइड में, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया माल्टोज में, फैट डाइजेस्ट हो गया मोनो और डाइग्लिसराइड्स में, और जो न्यूक्लिक एसिड था आपका, तो वो एंजाइम जो होगा न्यूक्लियेजेस, वो डाइजेस्ट कर देगा इसको न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस से। कहाँ से बेटा, पेनक्रियाटिक जूस से। अब जब पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं तो ये सारे एंजाइम जब एक्टिवेट होते हैं, है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनको पीएच चाहिए कि क्या, एल्कलाइन। पेप्सिन को पीएच क्या चाहिए, एसिडिक, इसको पीएच क्या चाहिए, एल्कलाइन। तो एल्कलाइन पीएच क्या होगा, 6 आपका जो होगा 7.8। कैसे हो जाता है, इसमें जो पेनक्रियाटिक जूस में म्यूकस तो निकलता ही है, इसके साथ इसमें क्या निकलता है, बाइकार्बोनेट। क्या निकलता है बेटा, बाइकार्बोनेट, जो इस ड्यूडेनम की वाल्स को भी बताता है एसिडिक कंडीशन से। और जो है, जो ड्यूडेनम में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन वेयर, तो यू हैव टू गिव द आंसर दैट प्रेजेंट इन द duodenum portion, which help in the secretion of the bicarbonate and provide the alkaline condition for the activation of the enzymes of inactive enzyme like trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases that provide a optimum pH that is 7.8. Okay, clear, very important, Brunner's gland। तो वो इन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। क्लियर हो गई। अब बेटा जो यहाँ पे, अब ये हमारा जो डाइजेशन है, ये ड्यूडेनम जो पोर्शन था आपका ना, जो ड्यूडेनम पोर्शन था, यहाँ पे जो सी शेप है आपका, यहाँ पे ये ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम डाइजेशन हमने बता दी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकली, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस।
बाइल जूस ने एमल्सिफिकेशन किया और इसने जो है डाइजेशन किया, किसको, स्टार्च को माल्टोज में, प्रोटीन पेप्टोन को डाइपेप्टाइड में, लाइपेज को मोनो में और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में। ये हो गया। अब जो इंटेस्टाइनल जूस जो निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, इंटेस्टाइनल जूस। इसको आप क्या कहते हैं, सकस इंटरकस, सकस इंटेरिकस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बेटा जो करेगा ये इंड प्रोडक्ट देगा, इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। क्या देगा, इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जैसे हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो फूड का इंड प्रोडक्ट होगा वो कहाँ, कौन देगा, सकस इंटरकस इंटेस्टाइनल जूस। अब बेटा ये जो सकस इंटरकस है, इंटेस्टाइनल जूस है, ये इंड प्रोडक्ट देगा। तो इंड प्रोडक्ट क्या है, जैसे हमने कहा जो डाइपेप्टाइड है तो उसमें एंजाइम क्या होगा, डाइपेप्टाइडेजेस, है ना। तो डाइपेप्टाइड में कौन कौन है, जैसे आपका डाइपेप्टाइड हो गया माल्टोज। माल्टोज कौन बनाया था, ऊपर, पहले तो माउथ में डाइजेस्ट हुआ और जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है कहाँ, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। ये किस में ब्रेक होगा, मोनो में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके, डाइसेकेराइड, सॉरी डाइपेप्टाइड नहीं डाइसेकेराइड, ओके। और डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एंजाइम कौन होगा, माल्टेज, क्लियर है। एक और लैक्टेज, लैक्टोज है जो कहाँ पे होती है, मिल्क में, लैक्टोज कहाँ होती है, मिल्क में। तो इसमें एंजाइम कौन होगा, लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, गलैक्टोज, ठीक है। ये किसको देगा, लैक्टोज को। अगर पूछ ले ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाएगा, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज क्या बनाएगा, लैक्टोज। तो ये सारे क्या है, डाइसेकेराइड है, और ये बेटा क्या है, मोनोसेकेराइड, सिंपलर फॉर्म, क्लियर है। और जब फ्रक्टोज जो ब्रेक होगा, फ्रक्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड है। ये किसमें बेटा, जो फ्रक्टोज ब्रेक होगा, वो सुक्रोज जो ब्रेक होगा, सुक्रोज, कौन सा एंजाइम, सुक्रेज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो हम कहते हैं जो ग्लूकोज है उसको हम कहते हैं ब्लड शुगर, फ्रक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर, है ना। सुक्रोज को हम कहते हैं कैन शुगर, गन्ने में जो होता है। लैक्टोज को हम कहते हैं सीड शुगर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर हैं, जो डिफरेंट जो अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो माल्टोज किस में ब्रेक होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज में लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रोज में सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, क्लियर हो गया। इसके बाद जब ये इनका जो डाइजेशन हो गया, वही अगला डाइपेप्टाइडेज है। तो जो हमारा डाइपेप्टाइड बना था, तो एंजाइम आ गया डाइपेप्टाइडेज, वो किसको तोड़ेगा, अमीनो एसिड में, किसमें बेटा, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की जो सिंपलर फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं बाई थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पहले ये डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ब्रेक इनटू डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड, क्लियर हो गया। अब प्रोटियोलिटिक एंजाइम की बात अगर करते हैं कि कौन कौन से हो गए, याद करो। स्टमक से स्टार्ट होता है डाइजेशन प्रोटीन का, तो प्रोटीन में पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, पेप्सिन हो गया, ये डाइजेस्ट करेगा। फिर आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे कैसे एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। और लास्ट में डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। अब फैट की बात आती है, तो जो फैट हमारा मोनो और डाई में टूटा था, मोनो प्लस डाई ग्लिसराइड्स, है ना, वो यहाँ पे भी लाइपेज निकलता है सकत इंटरकस में इंड प्रोडक्ट के लिए। तो वो क्या करेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, किस में तोड़ देगा बेटा,
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोडाइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंट में फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। और जो हमारा न्यूक्लियोसाइडेज था, जो हमने न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा था, न्यूक्लिएजेज एंजाइम जो थे, जो न्यूक्लिएज होंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लिएज आया, उसने इसको तोड़ा न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइडेज जो होंगे एंजाइम, वो इसको तोड़ देंगे शुगर और फास्फेट में। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज इसको तोड़ देंगे शुगर और फास्फेट में। जो बेटा हमारा डीएनए का जब आप डीएनए देखते हैं, डीएनए या आरएनए देखते हैं, तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो किसका बना होता है, शुगर और फास्फेट का टूटता है। न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम होगा वो किस में तोड़ेगा, शुगर और फास्फेट में। और जो न्यूक्लिएजेज होंगे वो न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे, तो वो पहले तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, शुगर, फास्फेट और बेस का। किसका बेटा बना होता है, शुगर, फास्फेट और बेस। तो पहले ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज, और फिर ये न्यूक्लियोटाइड किस में टूटेंगे, न्यूक्लियोसाइड में, शुगर और फास्फेट में टूट जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होते हैं, शुगर, फास्फेट और बेस। न्यूक्लियोसाइड में कौन होते हैं, शुगर, बेस, फास्फेट एब्सेंट होता है। ठीक है, डीएनए में। तो ये हमारा जो है सारा इंड प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गया। अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपके 1 से 2 क्वेश्चन श्योरली हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे आप कहते हैं कि पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज कुछ ऐसे अदर क्वेश्चन है। तो जो पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज को हम कहते हैं एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो इसमें एसिनर सेल्स होती हैं, अगर पूछ ले कि एसिनर सेल्स कहाँ होती हैं, तो कहाँ होती है, पेनक्रियाज में। तो एसिनर सेल्स सिक्रीट करती हैं एंजाइम। अच्छा, 2 तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन म्यूकस, सलाइवा, वैक्स, ये सारी चीज़ें सिक्रीट करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो डक्टलेस होती हैं। तो एसिनर सेल सिक्रीट करती हैं आपका एंजाइम्स, जो अभी हमने डिस्कस किया है। सारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो कौन सिक्रीट करेंगे, एसिनर सेल्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो बेटा से क्या करी करती हैं, डिफरेंट सेल, अल्फा, बीटा और डेल्टा, और भी सेल्स हैं। तो मोस्टली जो अल्फा बीटा सेल्स होती हैं, तो अल्फा सेल्स आपका ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन और बीटा सेल इंसुलिन। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम हार्मोन डिस्कस करेंगे। और ये एसिनर सेल्स हैं। तो 2 सेल्स हो गई, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी पेनक्रियाज में होती हैं, और एसिनर सेल्स भी पेनक्रियाज में होती हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपका सारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन है। अच्छे से सारा पोर्शन रिवाइज करेंगे और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक एक चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे और अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू।